Hi friends, myself Deepak Vyavare from Vyavare classes. Today we'll see lesson number 3, Geography, Standard 10, Physiography and Drainage System. So let's start. If you have not liked my video, like and share with your friends. Today we'll see the question answers of the Physiography and System. The lesson's name is Physiography, but what do you mean by Physiography? Physiography means the science which treats the Earth's exterior physical feature. Means physical features means mountain, valleys, rivers. These are the physical features. And drainage means system of water courses or drain or carry, you can say. So let's start. Our question number 1 is complete the sentence by choosing the right option. It is very important for the 1 mark. The objective may come. You have to choose the one right option. Brazil is covered mainly by. 4 options are there: highlands, plains, mountainous region, dissected hills. Can you tell the answer? And the answer is highlands. Second, like Brazil, India too has dash. High mountains, ancient plateaus, western flowing rivers, snow-capped mountain. The answer is ancient plateaus. Next, the Amazon basin is mainly characterized by droughts, filled by swamps, covered by dense forest, fertile. Can you guess the answer? Covered by dense forest. Next, number 4, Amazon is a large river in the world. Near its mouth, deltaic region are found, no deltas are found, deposition of sediment occurs, fishing is done. Answer is no deltas are found. Next, the Lakshadweep island of Arabian Sea are made from the part of separated from the mainland, coral islands, volcanic islands, continental islands. Can you guess the answer? It is coral island. Next, to the foothills of Aravallis lies to the Bundelkhand plateau, lies to the Mewar plateau, lies the Malwa plateau, lies the Deccan plateau. Answer is lies the Malwa plateau. Question number 2. Answer the following question. First is the differentiate between physiography of the Brazil and India. Physiography means science which treats Earth's exterior physical features. Means whatever physical division of Brazil and India we have to see or differentiate. We have to tell the difference. Difference बताना है इसमें. पहला सेंटेंस हम क्वेश्चन पर से ही बना सकते हैं, जैसे कि the physiography of Brazil and India can be differentiated with the help of the following points. The physiography of Brazil can be divided in highlands, great escarpment, coastal region, plains, island. 5 parts में Brazil physiography physically divided. See that highlands, escarpment, coastal region, plains and island groups. The physiography of India is divided in the Himalayas, North Indian plain, peninsula, coastal plain and island group. इंडिया भी 5 इसमें फिजियोग्राफिकली डिवाइडेड है. देयर आर नो हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन ब्राजील. ब्राजील में हाई और लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन नहीं है. ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी हाई लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स आर देयर. आपको जो बोल्ड जो लेटर दिख रहे हैं, दूसरे कलर में लेटर दिख रहे हैं, आप उनको ध्यान करके खुद का भी सेंटेंस बना सकते हो इसमें. Number 3 point, Himalayan mountain range extends in the northern part of India. Himalayan mountain range इंडिया के नॉर्थ साइड में. Similarly, mountain ranges region in the western घाट में वेस्ट साइड में और mountainous region ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में. मतलब 3 माउंटेन रेंजेस है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और हिमालय. नंबर 4, the height
हाईएस्ट रेंज ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब दिखाया गया है, अल्टीट्यूड मीन्स द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, 500 मीटर्स टू 1000 मीटर इन ब्राज़ील। वहाँ के जो अल्टीट्यूड है वहाँ पे 500 से 1000 मीटर तक ही है। लेकिन इंडिया में अगर देखोगे तो हाईएस्ट रेंज ऑफ अल्टीट्यूड 6000 टू 8000 मीटर्स इन इंडिया। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। नॉर्थ इंडियन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। ऑन द अदर हैंड नो सच डेजर्ट एरिया लाई इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में डेजर्ट एरिया नहीं है। मेनी वाइड प्लेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ, बहुत सारे वाइड प्लेन है नॉर्थ साइड में, कोस्टल एरियाज इंडिया के। लेकिन ब्राज़ील में देयर आर नो वाइड प्लेन्स, वाइड प्लेन नहीं है। जो बोल्ड लेटर है उनको आप ध्यान में रख के खुद का भी सेंटेंस आप बना सकते हो। At many places there are regions of backwaters in India. Backwaters means the part of the river not reached by the current where water is stagnant. पानी रुका हुआ होता है रिवर के करंट में, रिवर का वाटर जो है, रिवर का करंट का वाटर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसको बैक वाटर कहते हैं। ऐसे रीजन्स इंडिया में है और ब्राज़ील में ऐसे कोई भी रीजन नहीं है बैक वाटर का। नेक्स्ट है द ग्रेट एस्कार्पमेंट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। दिस ग्रेट एस्कार्पमेंट डिमार्केट्स ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राज़ील एंड हाईलैंड। ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है वो डिमार्केट करता है ईस्टर्न साइड ब्राज़ील एंड हाईलैंड में, और इंडिया में ऐसा कोई भी एस्कार्पमेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। मीन्स मेजर्स मीन्स सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन निकालोगे जो रिवर का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो आप। सेंटेंस जो है क्वेश्चन के पार्ट से ही बनाया हमने। फॉलोइंग आर द मेजर्स बीइंग टेकन टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स इन इंडिया। See that controlling the discharge of human sewage wastewater into rivers. Controlling the discharge of human sewage. सीवेज मीन्स वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर आता है ह्यूमन उसको हमको कंट्रोल करना है। उसके बाद में देखते हैं अप्लाइंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है उसको प्री ट्रीटमेंट करना है, उनको रिवर में छोड़ने से पहले उसको ट्रीटमेंट करके, उसको ट्रीट करके बाद में उसको रिवर में छोड़ना है। डिस्प्लेइंग द होर्डिंग, होर्डिंग बैनर्स जो है आपके, वो बैनर इन्फॉर्मिंग टूरिस्ट, टूरिस्ट को इन्फॉर्म करना है नॉट टू पोल्यूट द वाटर ऑफ द रिवर एंड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस की जानकारी उनको देना है। रिमूविंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रिवर, जो सॉलिड वेस्ट है रिवर्स के वो निकालना है। एंड अप्लाइंग अदर रिवर क्लीनिंग प्रोसेसेस, रिवर क्लीन के जो दूसरे प्रोसेस है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन इंडिया का एक फिजियोग्राफिकली एक पार्ट है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन आर एज फॉलोज। जैसे कि मैंने बताया कि आपको पहला सेंटेंस खुद क्वेश्चन पे से बनाने आना चाहिए। पहला पॉइंट है अ फ्लैट लो लाइंग एरिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिस रीजन इज नोन एज द नॉर्थ इंडियन प्लेन। एक फ्लैट लो लाइंग एरिया है इंडिया के नॉर्थ साइड में, इसलिए इसको नाम दिया गया है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ पर एग्जैक्ट लाई बिटवीन हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन है नॉर्थ साइड में, और पेनिनसुला इन द साउथ। पेनिनसुला मतलब द लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड बाय द वाटर, जो इसी लैंड की जिसमें तीनों साइड्स में वाटर है। तो नॉर्थ साइड में हिमालय है और साउथ साइड में उसके पेनिनसुला। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम, राजस्थान से लेकर पंजाब तक और आसाम तक फैला हुआ है। द नॉर्थ इंडियन प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन के 3 पार्ट किए गए। द लो लाइंग एरिया टू द ईस्ट ऑफ अरावली इज नोन एज द गंगा प्लेन, जो लो लाइंग एरिया है ईस्ट साइड में अरावली के उसको गंगा प्लेन नाम दिया है। इट स्लोप्स टू द ईस्ट, उसका जो स्लोप है ईस्ट साइड में। द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक्सटेंड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो वेस्ट बंगाल में है इंडिया के एंड बांग्लादेश में, इसी को हम सुंदरबन, सेकंड पार्ट है उसका सुंदरबन।
नेक्स्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट, इट इज नोन एज द थार डेजर्ट और मरुस्थली। उसको दो नाम दिए गए, थार डेजर्ट या मरुस्थली। वो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन के। स्टेट ऑफ राजस्थान ऑक्युपाइड बाय द थार डेजर्ट, और ये स्टेट ऑफ राजस्थान में मरुस्थली देखने को मिलते हैं। प्लेन्स ऑफ पंजाब लाइज टू द नॉर्थ ऑफ थार डेजर्ट, जो पंजाब का प्लेन्स है ये थार डेजर्ट में लाया होता है। इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंज, अरावली के वेस्ट साइड में और दिल्ली रेंजेस में ये अपने को देखने को मिलता है। द प्लेन्स ऑफ पंजाब स्लोप्स टू द वेस्ट, पंजाब का जो प्लेन है उसका स्लोप वेस्ट साइड में। इट हैज वेरी फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर, इसीलिए एग्रीकल्चर इज हाईली डेवलप्ड हियर, एग्रीकल्चर वहाँ पर हाईली डेवलप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्प इन द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ पैंटनल। मतलब पैंटनल के वहाँ पर जो स्वैम्प फॉर्म होते हैं, स्वैम्प मतलब वेटलैंड बॉग, जिसमें पानी और मिट्टी के वजह से वो लैंड वेट हो जाती है, कीचड़ दलदल जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्माण होने के क्या कारण है, क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला सेंटेंस जैसे कि मैंने बताया आपको क्वेश्चन पे से ही बनाना है। फॉलोइंग कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्वैम्प्स एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन। पहला है पैराग्वे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो द पैंटनल रीजन। पैराग्वे रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज मतलब एक रिवर से जो सब रिवर निकलते हैं, वो रिवर से जो दूसरी रिवर निकलती है उसके जो पैंटनल रीजन्स में दिखाई देती है, वहाँ पे बहती है। ये पहला रीजन था। पैंटनल रिसीव्स रन ऑफ फ्रॉम द ब्राजीलियन आइलैंड, ब्राजीलियन आइलैंड से जो भी पानी आता है वो डिपार्ट रन ऑफ पैंटनल रीजन को रिसीव होता है, वहाँ से जाता है। सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय पैराग्वे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी गेट डिपॉजिटेड इन द लो लाइंग एरिया ऑफ पैंटनल रीजन। जहाँ पर लो लाइंग एरिया है वहाँ पे जो सेडिमेंट्स है, जो पत्थर मिट्टी कीचड़ जो भी लेकर आते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। एंड द सेडिमेंट एंड इरोजन सबड्यूज रेसिड्यूज एज वेल एज वाटर रिमेन फिल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो सेडिमेंट लाता है या इरोजन के जो भी आता है इसमें पूरे साल भर वहाँ पर पानी भरा होता है इन द पैंटनल रीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्प। इसके वजह से वहाँ पे स्वैम्प फॉर्म हो जाते हैं, वेटलैंड फॉर्म हो जाती है, दलदल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर वाटर डिवाइड ऑफ द इंडिया गिविंग एग्जाम्पल। कौन से ऐसे वाटर डिवाइड रेंजेस है इंडिया में, मतलब इंडिया का जो मेजर वाटर डिवाइड कहाँ होता है। क्वेश्चन पे पार्ट बना है हमने, मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। देखिए हिमालय, अरावली रेंज, विंध्य रेंज, सातपुड़ा रेंज एंड वेस्टर्न घाट। मेजर वाटर डिवाइड है 5 है, हिमालयस, अरावली रेंज, विंध्य रेंज, सातपुड़ा रेंज एंड वेस्टर्न घाट्स। दीज आर ऑल माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल देखिए वेस्टर्न घाट्स, अभी वन बाय वन हम देखेंगे। वेस्टर्न घाट सेपरेट्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट क्या करती है, सेपरेट करती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। वेस्ट साइड में जो रिवर फ्लो रही है जो बे ऑफ बंगाल को मिलती है जाकर। विंध्य रेंज सेपरेट द गंगा ड्रेनेज बेसिन। विंध्य रेंज क्या करती है, गंगा ड्रेनेज बेसिन के रिवर को सेपरेट करती है और नर्मदा ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करती है। उसके बाद में हिमालय, हिमालय जो है, हिमालय सेपरेट्स द रिवर्स फ्लोइंग हिमालयन सिस्टम फ्रॉम द रिवर फ्लोइंग ट्रांस हिमालयन रेंज। हिमालय भी सेपरेट करता है जो रिवर हिमालयन सिस्टम से फ्लो होती है और ट्रांस हिमालयन रेंज से फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट। ये भी आपको 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। पहले है अमेजॉन रिवर बेसिन। अमेजॉन रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट लैंड ऑफ ब्राजील। लार्जेस्ट लैंड है ब्राजील की। इट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के नॉर्थ साइड में। एंड द स्लोप ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन टू द ईस्ट, और अमेजॉन रिवर बेसिन का जो स्लोप है वो ईस्ट साइड में है। Width of Amazon river basin is maximum nearly 1300 किलोमीटर in the west। उसकी जो width है अमेजॉन रिवर बेसिन की वो वेस्ट साइड में 1300 किलोमीटर है, और उसकी width जो है मिनिमम मैक्सिमम 1300 और मिनिमम है 240 किलोमीटर। वेयर आर गायना हाईलैंड्स एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स कम क्लोजर, जहाँ पर गायना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड पास में आते हैं। एज अमेजॉन रिवर अप्रोचेज द अटलांटिक ओशन, जब अमेजॉन रिवर अटलांटिक ओशन को अप्रोच होती है तो विड्थ ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन इंक्रीजेस।
उसकी विड्थ जो है वो बढ़ते चलती है। इन अमेजन रिवर बेसिन और प्लेन इज कवर्ड बाय एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजन रिवर बेसिन में हमको एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अमेजन रिवर बेसिन इज इनएक्सेसिबल विच कैनॉट बी पास इजीली। क्यों? क्योंकि डेंस अंडरग्रोथ ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड आता है और रेन फॉरेस्ट है, इसीलिए वहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड शॉर्ट नोट है हिमालयाज। हिमालय के बारे में हम देखेंगे। हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज ए यंग फोल्ड माउंटेन। जो बोल्ड लेटर है, इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पामीर नॉट इन ताजिकिस्तान इन द वेस्ट एंड टू द ईस्ट। पामीर नॉट से लेके ताजिकिस्तान से लेके वेस्ट तक हिमालय इज मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया की मेजर माउंटेन सिस्टम है। सेकंड, इन इंडिया हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से नॉर्थ साइड में शुरू होता है तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट साइड तक। हिमालय एज वेल एज मेनी पैरेलल माउंटेन रेंजेस गेट इंक्लूडेड इन द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। हिमालय के साथ में, उसके साथ में बहुत सारे पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी है कि जो उसके साथ इंक्लूड किए जाते हैं। शिवालिक नाम की जो सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की, इट इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। यंगेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की। नेक्स्ट अगर देखोगे, एज वी मूव फ्रॉम शिवालिक रेंज टू द साउथ टू द नॉर्थ, हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे, मतलब नीचे से अगर जैसे ऊपर ऊपर जाओगे शिवालिक से, वी कम अक्रॉस लेसर हिमालय, हमको लेसर हिमालय मिलेगा एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस। मतलब साउथ टू नॉर्थ तीन इसमें डिवाइड किए जाते हैं रेंजेस हिमालय के, शिवालिक, लेसर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। ओके, दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड। शिवालिक यंग है और यंगर और यंगेस्ट। हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैन ऑल्सो डिवाइडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी नॉर्थ टू साउथ हमने देखा, अभी यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। तो वेस्ट टू ईस्ट कैसे? वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, उसको दूसरा नाम भी है कश्मीर हिमालय, कुमाऊन हिमालय और आसाम हिमालय। नेक्स्ट है कोस्ट ऑफ ब्राजील। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है ब्राजील के कोस्ट। कोस्ट मीन्स जो समुद्र के किनारे होते हैं उसको कोस्ट कहते हैं। कोस्ट लाइन ऑफ ब्राजील एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 7400 किलोमीटर। ब्राजील को 7400 किलोमीटर का कोस्ट लाइन मिला है। इट इज डिवाइडेड इनटू नदर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। दो कोस्ट डिवाइड किए गए, नदर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। कोस्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो ग्रांडी डी नॉर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ नदर्न कोस्ट। जो नदर्न कोस्ट है जिसको हम रियो ग्रांडी नॉर्थ कहते हैं या उसको नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी कहते हैं। कोस्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम रियो ग्रांडी डी नॉर्थ टू साउथ इज नोन एज ईस्टर्न कोस्ट या उसको साउथ अटलांटिक कोस्ट भी कहा जाता है। नदर्न कोस्ट इज लो लाइंग रीजन एज अमेजॉन एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूटरी फ्लो टू द नदर्न कोस्ट। नदर्न कोस्ट जो है लो लाइंग रीजन है, उसका हाइट कम है, एल्टीट्यूड कम है और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है नदर्न कोस्ट में फ्लो होते हैं मीटिंग नॉर्थ अटलांटिक ओशन को। मोरेजो आइलैंड जो है एंड सैव मार्कोस बेज लाई इन द कोस्ट। मोरेजो कोस्टल आइलैंड जो है ये नदर्न कोस्ट लोकेटेड बिटवीन द माउथ रिवर ऑफ अमेजॉन एंड रिवर टोकेंटिन्स। मोरेजो जो आइलैंड है, कोस्टल आइलैंड जो है, ये रिवर अमेजॉन और रिवर टोकेंटिन्स के बीच में है। मेनी स्मॉल रिवर्स फ्लो टू द ईस्टर्न कोस्ट एंड मीट अटलांटिक ओशन। जो छोटे छोटे रिवर ईस्टर्न कोस्ट से बह के आते हैं साउथ अटलांटिक को मीट करते हैं, उनको मिलते हैं। साउ फ्रांसिस्को इज द ओनली मेजर रिवर मीटिंग द साउथ अटलांटिक ओशन। बाकी स्मॉल रिवर्स आते हैं और एक बड़ी रिवर जो है साउ फ्रांसिस्को, ये अटलांटिक ओशन को मीट करती है, साउथ अटलांटिक को। मेनी बीचेस एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस लाई इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील। वहाँ पे सैंड बीचेस है, सैंड ड्यून्स है जो ईस्टर्न कोस्ट को, ब्राजील को प्रोटेक्ट करती है कोरल रीफ और एटल आइलैंड से। The Indian Peninsula. What is peninsula? Peninsula means the land which is surrounded by three sides by the water. ऐसी लैंड के जिसको तीनों साइड में वाटर है। इंडिया के पेनिनसुला जो है उसके बारे में, द इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। जो
साउथ है, साउथ साइड, साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन के साउथ साइड में इंडियन पेनिनसुला है। इंडियन दिस रीजन टेपर्स टुवर्ड द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन टेपर्स मतलब रेड्यूसेस होता है। आपको पता होगा कि इंडिया का जो साउथ साइड का शेप है वो वी शेप है, जो वी शेप है उसी को हम पेनिनसुला कहते हैं, और उसका जो साउथ साइड जो है दैट टेपर्स, टेपर्स मीन्स रेड्यूस होता है इंडियन ओशन के तरफ। मेनी प्लेट्यूज एंड हिल्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन पेनिनसुला। बहुत सारे प्लेट्यूज है, हिल्स है, एंड अरावली रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडियन पेनिनसुला। इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडियन पेनिनसुला। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली जो है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जो अपने को इंडियन पेनिनसुला में देखने को मिलती है। द इंडियन पेनिनसुला ऑल्सो इंक्लूड सीरीज ऑफ प्लेट्यू। बहुत सारे प्लेट्यूज भी है यहाँ पर बॉर्डरिंग द प्लेन। कौन से प्लेट्यू है? महाराष्ट्र प्लेट्यू है, कर्नाटक तेलंगाना प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये मेन प्लेट्यूज है ये रीजन्स के। विंध्यास एंड सातपुड़ास रेंजेस आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। विंध्या और सातपुड़ा ये रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, ये सेंट्रल पार्ट है इंडियन पेनिनसुला के सेंट्रल पार्ट में है। इट ऑल्सो इंक्लूड माउंटेनस हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। और उसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये दो रेंजेस भी यहाँ पर इंडियन पेनिनसुला में है। नेक्स्ट है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। द ग्रेट एस्कार्पमेंट इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल रीजन इन ब्राजील। ब्राजील की एक स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो साओ पॉलो टू द पोर्ट एलेग्री। द हाइट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड प्लेट्यू डिक्रीजेस रिमार्केबली लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट। जो साओ पॉलो से लेके पोर्ट एलेग्री तक है जो हाइट है ब्राजीलियन हाईलैंड की, ये डिक्रीज होते चलती है, कम होते चलती है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट। जब ग्रेट एस्कार्पमेंट फॉर्मेशन की बात करते हैं हम तो डिक्रीज होती चलती है। ग्रेट एस्कार्पमेंट डिमार्केट्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड एंड प्लेट्यूज। ग्रेट एस्कार्पमेंट डिमार्केट करता है, बॉर्डर डिमार्केट करता है ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड के। अल्टीट्यूड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड इज अप्रोक्सीमेटली 790 मीटर इन द रीजन ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ब्राजीलियन हाईलैंड की हाइट जो है 790 मीटर है ग्रेट एस्कार्पमेंट में। इन अदर रीजन इट्स हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, और उसकी हाइट दूसरे रीजन में कम होती दिखाई देती है। द नेचर एंड द स्लोप ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट अफेक्ट्स द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ब्राजील। जो नेचर है या स्लोप ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट है इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट होती है, उसका परिणाम ब्राजील के क्लाइमेट के ऊपर होता है। इट एक्ट्स बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आते हैं उसको ऑब्स्टेकल करने का काम, उसको रोकने का काम ये ग्रेट एस्कार्पमेंट करता है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट लीड्स टू द हेवी रेन्स इन द ब्राजीलियन कोस्टल एरिया। ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से हेवी रेनफॉल होता है ब्राजीलियन कोस्टलैंड में, और गिव राइज रेन शैडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ब्राजीलियन। उसके अपोजिट साइड में रेन शैडो एरिया वहाँ पे, इसीलिए द रेन शैडो एरिया उसको हम ड्रॉट क्वाड्रिलेटर कहते हैं। एक साइड में कोस्टल एरिया में हेवी रेन और उसके अपोजिट साइड में रेन शैडो, इसलिए उसको ड्रॉट क्वाड्रिलेटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑन ब्राजील। सी दैट गिव रीजन्स है, ब्राजील में वेस्ट साइड फ्लो आने वाले रिवर्स नहीं है। गिव द रीजन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ब्राजील ओरिजिनेट फ्रॉम ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड से बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उनकी शुरुआत होती है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं वो। अल्टीट्यूड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ एंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो अल्टीट्यूड है, हाइट है ब्राजीलियन हाईलैंड की, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, स्लोली डिक्रीज, कम होते चलती है साउथ से नॉर्थ तक और वेस्ट से ईस्ट तक। एज इट्स इफेक्ट रिवर इन ब्राजील फ्लो टुवर्ड द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन। इसकी वजह क्या होती है? इसके वजह से जो रिवर्स है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड में फ्लो होना शुरू होती है। रिवर फ्लोइंग द टूवर्ड्स नॉर्दर्न डायरेक्शन मिड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जो नॉर्थ साइड में रिवर फ्लो होती है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जाके मिलती है, एंड रिवर फ्लोइंग टू द ईस्टर्न डायरेक्शन मिड द साउथ अटलांटिक। जो ईस्ट साइड में फ्लो होती है वो साउथ अटलांटिक को जाकर मिलती है। दस देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील, इसलिए वहाँ पर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर देयर। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल रीजन है
there are dissimilarity between the eastern coast and the western coast of India. Dissimilarity, similarity का opposite है sameness. There is a difference between east coast and west coast. वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट में डिफरेंस है इंडिया के. क्यों, क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन क्या है? एट प्लेसेस स्पर्स मीन्स माउंटेन रेंज टेकिंग अप फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू वेस्टर्न कोस्ट. जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंज है वो वेस्टर्न कोस्ट में एज इट इज ए फैक्ट वेस्टर्न कोस्ट इज रॉक इन नेचर. तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो रॉकी इन नेचर, वहाँ पे रॉक्स है ज़्यादा से ज़्यादा. द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कंपेरेटिवली लेस. द विड्थ जो है वेस्टर्न कोस्ट की कंपेरेटिवली लेस है, कम है विड्थ उसकी. वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी फ्रॉम एस्टोरीज एंड डेल्टा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. जो विड्थ है वेस्टर्न कोस्ट की कंपेरेटिवली लेस है. वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी फ्रॉम एस्टोरीज एंड डेल्टा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. मतलब अरेबियन सी के वहाँ पे डेल्टाज और एस्टोरीज फॉर्म होते हैं. ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर. अगर दूसरी जगह देखते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का वो डिपोजिशनल वर्क रिवर का वहाँ पर ज़्यादा है. द विड्थ ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज कंपैरेटिवली मोर. जो विड्थ है ईस्टर्न कोस्ट की ज़्यादा है. दोनों का डिफरेंस समझ में रखिए. मोस्ट ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल फॉर्म डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. जो ईस्ट साइड में फ्लो होने वाली रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म करते हैं. दस देयर आर डिसिमिलरिटी बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट एंड western coast of India. Next, give reason say there are fewer natural ports on the eastern coast of India. The eastern coast of India is formed due to the depositional work eastward flowing river meeting the Bay of Bengal. Eastern coast जो इंडिया का वो डिपोजिशनल वर्क के वजह से हुआ है. पिछले आंसर्स में हमने देखा ईस्टर्न कोस्ट में डिपोजिशन ज़्यादा है. ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, वो अपना जो सेडिमेंट्स है वो वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं. मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस. जो वेस्टर्न कोस्ट है इट इज सबमर्ज्ड माउंटेन. ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया इज अ कोस्ट ऑफ इमरजेंस. लेकिन ये अपोजिट है. कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस और कोस्ट ऑफ इमरजेंस ये अलग अलग है. देखो एज इट्स इफेक्ट सी इज अ डीपर इन द वेस्ट एंड सी इज शैलो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. मतलब अगर वेस्ट साइड में सी डीप है और ईस्ट साइड में शैलो है. द वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर मीटिंग द अरेबियन सी फॉर्म एस्टोरी एट मेनी प्लेसेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है अरेबियन सी को तरफ वो जाकर मिलती है, वो एस्टोरीज फॉर्म करती है. एस्टोरीज मतलब जहाँ पे टाइड जो है वो रिवर स्ट्रीम को जाकर मिलती है, दैट इज एस्टोरीज एट मेनी प्लेसेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. ऑन द अदर हैंड eastward flowing river meeting the Bay of Bengal form deltas at many places on the eastern coast. ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा फॉर्म होता है और वेस्टर्न कोस्ट में एस्टोरीज. एज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर शिप टू रीच द ईस्ट कोस्ट कवर्ड विद सेडिमेंट. तो सेडिमेंट के वजह से शिप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते ईस्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स है. और शिप को आपको पता है कि जो शिप है वो पानी में जाते वक्त में उसका 1/3 जो पोर्शन है वो पानी में होता है, तो वहाँ पर नहीं आ पाते वो, क्योंकि वो डीप कम है उसका. एंड देयरफॉर देयर आर फ्यूअर पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट्स आप समझ लीजिए और पूरा अंत तक जरूर देखिए. एज कंपेयर टू द अमेजोन पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ग्रेटली. अगर कंपैरिजन करते हम तो अमेजोन और गंगा दोनों रिवर है, अमेजोन रिवर और गंगा रिवर, ये दोनों में से पोल्यूशन जो है गंगा रिवर का अफेक्ट करता है ज़्यादा. क्या वजह है? द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अमेजोन रिवर बेसिन इज कंपेरेटिवली लो. अमेजोन रिवर बेसिन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा लोग नहीं रहते वहाँ पर. पॉपुलेशन का अगर डेंसिटी काउंट करेंगे तो लो है वहाँ पर. एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्री आल्सो लिमिटेड इन दिस रीजन. नंबर ऑफ इंडस्ट्री भी ज़्यादा नहीं है अमेजोन रिवर बेसिन में. एज इट इफेक्ट वाटर पोल्यूशन अमेजोन रिवर बेसिन इज कंपेरेटिवली लो. इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन लो है. लेकिन उसके अपोजिट इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन कंपेरेटिवली है. गंगा रिवर के बेसिन में बहुत सारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी पॉपुलेशन हाई है. मेनी इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड. गंगा रिवर बेसिन में बहुत सारे इंडस्ट्री फ्लरिश्ड हुए, प्रॉस्पर्ड हुए एंड इंक्रीज द वाटर पोल्यूशन. आपको पता है इंडस्ट्री शुरू होने के बाद में उसका वेस्ट वाटर
ज़्यादा ही निकलने लगा, इसी की वजह से वाटर पोल्यूशन भी ज़्यादा ही है। देयरफॉर एज कंपेयर टू द अमेजोन, पोल्यूशन ऑफ इन द गंगा विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए।